کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کر لے جیسا؟ نبی نے فرمایا سود اور بیاس کا جو گناہ ہے، جو پاپ ہے، اس گناہ کے 70 حصے، 70 درجات ہے، 70 ٹکڑے، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اس کونے سے لے کے جیسے یہ پھول رکھے ہوئے ہیں، ایسے ہی سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 ٹکڑے، سب سے بڑا ادھر، اس سے چھوٹا ادھر، پھر اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا۔ نبی فرماتے ہیں سب سے چھوٹا والا حصہ اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ آج کے بعد بولو، میری طرف توجہ دو، ادھر دیکھو، ادھر حضرت لوگوں نے چھوڑنے جا رہے ہیں، میری طرف توجہ دو۔ آج کے بعد کوئی حرام لقمہ کھائے گا؟ سود کا کوئی روپیہ پیسہ کھائے گا؟ ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنا۔ اللہ 5% مسلمان ہیں۔ آپ تو گاؤں میں رہ رہے ہیں، شہروں میں جا کر کے دیکھو، گاؤں میں کرتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں چلتا۔ بتاؤں، آپ نے نام سنا ہوگا کمیٹی کا، کمیٹی میٹنگ، اس کا میں مطلب بتا دوں تو تم سمجھ جاؤ گے کیا۔ 10 آدمی اکٹھے ہوئے، 10 ہزار روپے ہر مہینے میں جمع کر رہے ہیں، وہ 1 لاکھ روپیہ جمع ہوا۔ اب یہ اٹھا رہے ہیں 90,000 میں، یہ اٹھا رہے ہیں 85,000 میں، یہ اٹھا رہے ہیں، یہ بولی چل رہی ہے، سمجھے؟ یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کمیٹی، میٹنگ، کیا بولتے ہیں؟ کمیٹی، لاٹری بولتے ہیں یہاں پہ، خوب چل رہی ہے آج کل گاؤں میں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ناجائز و حرام۔ ہاں اس کا طریقہ اور بتا دوں، سنو بات نکلنا جائے۔ اس کا طریقہ، 10 آدمی اکٹھے ہوئے، اکٹھے ہونے کے بعد 1 لاکھ روپیہ جمع ہوا، جمع ہونے کے بعد جس کو ضرورت ہے پورے لاکھ کے لاکھ دے دو، نہ 1 روپیہ کم نہ زیادہ، یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اور کم و بیشی کے ساتھ ناجائز و حرام۔ سمجھ رہے میری بات؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ مت، خود بھی مت کھانا، بچوں کو بھی مت کھلانا۔ تمہارا گاؤں ہے، یہ دیہات ہے، یہاں پہ زمین کا کاروبار ہوتا ہوگا۔ اگر کوئی زمین 2 لاکھ روپے دے کر کے 2 ایکڑ زمین لے لے، 3 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 10 سال، جتنے سال کے لیے زمین والے میں اور پیسے والے میں بات طے ہو گئی، یہ جائز۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اناج پہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا، یا جتنے بھی طے ہو جائے، 10 کوئنٹل تمہارا، 5 کوئنٹل، جتنا بھی طے ہو جائے نا، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں اگر 2 لاکھ روپے دیے اور زمین میں نے لے لی، اور میں اس وقت زمین چھوڑوں گا جب تم پورے کے پورے مجھے 2 لاکھ روپے دو گے، اس کو کیا بولتے ہو؟ یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ روپے گلاؤ، روپے پھراؤ، پھراؤ بولتے ہیں نا، رہن جو رکھتے ہیں، پھراؤ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ اس کو بولتے ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اگر کھاؤ تو لقمہ حلال کر کے کھاؤ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتا دوں، بات مت کرو، میری طرف توجہ رکھو۔ بیماریوں سے بچنے کا طریقہ بتا دوں۔ آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے، اگر 5 لوگ ہیں تو کسی نہ کسی کی دوا ضرور آ رہی ہے۔ بولو آ رہی نہیں آ رہی؟ اتنے روپیے پیسے ڈاکٹروں کو جاتے ہیں، سب کچھ بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ تم کاشتکار ہوگے، تمہاری زمین ہوگی، بولو ہے کہ نہیں؟ جی ہاں گاؤں میں ہوتی ہے سب کی، چاہے 10 بیگھے ہو 2 بیگھے ہو، لیکن ہوتی ہے سب کی، ہوتی بہرحال۔ اگر تمہاری زمین میں اناج ہو رہا تو 20 کلو ہو رہا ہے نا، 20 کلو، اس 20 کلو میں 19 کلو تمہارا ہے اور 1 کلو وہ غریبوں کا حق ہے، 20واں حصہ۔ ایسے ہی 20 کوئنٹل سے آپ جوڑتے چلے جاؤ، 100 کوئنٹل ہو گیا تو کتنے ہوگا؟ 5۔ سمجھ رہے؟
1 क्विंटल हो गया तो कितने हो गए 5 किलो, मतलब 20वां हिस्सा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये किसका हक है ये बोलो? ये इसकी अनाज की ज़कात है जिसको उशरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जरूर गरीबों तक पहुंचाओ, वरना गरीबों का माल खाओगे कभी सर समझ नहीं बैठ सकते। जहां कहीं निकलता चला जाएगा, कोई बीमारी में जाए, चोरी हो जाए, कहीं केस में फंस के खराब हो जाए, लड़ाई झगड़े में जाकर के कहीं थाने कचहरी में लग जाए, बीमारी होकर के उसमें लग जाए, मतलब किसी न किसी तरीके से वो दुनिया पे निकल नहीं है। मैं बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन आ जाती है कभी कभी जबान पे तो बताता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? कितना है यार, 100 किलो में 5 किलो जा रहा, ये हमारा ही नहीं। और तुम ये जब करोगे तो तुम्हारे बच्चे बीमार कम होंगे, तुम्हें हादसात कम आएंगे, वो रिस्क खाओगे ना तो वो रिस्क लगेगा, बीमारी नहीं करेगा। इन बातों पर तवज्जो रखोगे, ध्यान रखोगे? बोलो बोलो इंशाल्लाह। सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं बड़े पीर की बारगाह वो गए, बात मत करो बेटा, बड़े पीर की बारगाह वो गए जहां पर लोग झाड़ू मारते मारते वली हो जाते हैं। जी जी, क्या बात है। कुरान शरीफ में है, हुदहुद वाला वाकया तुमने सुना होगा, बोलो सुना नहीं सुना? अल्लाह बरकत फर, सुना नहीं सुना? हुदहुद वाला वाकया नहीं सुना? सुन लो जरा सा, मुख्तसर सुनाऊं ताकि जो मेरा रिजल्ट है वहां। हजरत सुलेमान की हुकूमत जिन्नात पर भी थी, परिंदों पर भी, हवा पर भी, इंसानों पर भी। इकट्ठा कर लिया, आ जाओ। वतफक्कद अत्तैर फक़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद, कुरान शरीफ में कहा हुदहुद कहां है, मैं नहीं देखता। कहा हुदहुद गायब, आने दो। जब हुदहुद आई, कहां थी? कहने लगी अल्लाह के नबी मैं मुल्क सबा से एक खबर लाई हूं। कहा क्या खबर है? कुरान में है ये वाक़या, क्या खबर है? कहा वह एक औरत है जिसका नाम बिल्कीस है, वो मर्दों पे हुकूमत कर, उसका तख्त है, मोती जड़े हुए, पाए सोने, मतलब बड़ी बहुत सारी बातें, उसका तख्त है ऐसा। अब ऐलान कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, ये बताओ कौन है जो बिल्कीस का तख्त 1500 किलोमीटर की दूरी से तकरीबन, कौन है जो तख्त लेकर के आएगा? किसी की हिम्मत खड़ी, एक जिन खड़ा हुआ जिसका नाम इफरीत जिन था। काला इफरीतुम मिनल जिन, कुरान में आया नहीं आया? का इफरीत जिन खड़ा हुआ, सारे जिन्नातों का सरदार, मैं लाऊंगा। का कितनी देर में? का आपकी महफिल अंतकूम मिन मकामिक, महफिल बर्खास्त नहीं होगी, ले आऊंगा। सलाम बोले नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले नहीं, और जल्दी वाला लाओ। अब उससे ताकतवर कौन है? ये तो पहाड़ को उठा के लाने वाला जिन है 1500 किलोमीटर से। मगर वहां पर एक अल्लाह का वली खड़ा हो गया, जरा वली की ताकत देखो। जी जी, वली खड़ा हो गया, उस वली का नाम आसिफ बिन बरखिया। कब मैं लाऊंगा? कहा कितनी देर में? का आप अपनी आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, मैं ले आऊंगा। जी जी, उन्होंने पलक झपका, इन्होंने ऐसे किया, तख्त आ गया। ये इंग्लैंड के अंग्रेज ने वाकया पढ़ लिया, ईमान ले आया, बोला मुझे भी ये इल्म सीखना है। अंग्रेज बहुत पढ़ते ना, और तुम्हारा कुरान है तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें तो मोबाइल से फुर्सत मिले तब घूरे पे पड़ा हुआ चैटिंग देख रहे हो। जी जी, अब जरा सुनो, वो ईमान ले आया, उसने कहा मुझे भी इल्म सीखना, नमाजें पढ़ना, ताकि मैं भी ऐसे ही हो जाऊं। वो बेचारा जमातियों का हाथ लग गया, जिनके पैजामे ज्यादा ऊंचे, कढ़ाइयां ही मंजवाई उससे, 1 साल रपटाते रहे जमाते। बोला मुझे वो इल्म सिखा दो ना। अब सिखा, बोले अल्लाह सब दे देगा, अल्लाह सब दे देगा। मरवा दिया, उसकी कढ़ाइयां मंजवाते मंजवाते। इत्तेफाक से उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना नहीं, अलग नहीं हुआ। इत्तेफाक से जो अभी पाकिस्तान में पाक पटन शरीफ है ना, वहां से उसका गुजर हो गया। जैसे ही गुजर हुआ, वहां पर मजार शरीफ है साबिर पाक के मामू का,
बाबा फरीद उद्दीन गंज शकर का। जी जी वहां से लोग आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा। अरे उसने कहा अंग्रेज ने, अरे ये कौन लोग हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़ी लाइटिंग हो रही है। तो वो तो थे ही ऊंचे पैजामे, बोले नो यहाँ शिरक है, यहाँ मत जाइयो, मजार में मत जाइयो, यूं है तू, ऐसे तमाम बात। वो हाथ छोड़ा के भाग गया। मुझे लगता अल्लाह के वली खींच रहे थे उसको। और जैसे ही गली में पहुंचा, एक फकीर ने पकड़ लिया, बगल में मोर के परों की झाड़ू, अस्सलामु अलैकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले लगता है बाबा के मेहमान हो? कहा जी मैं मेहमान हूं। ये झाड़ू मारने वाला कहने लगा मैं मेजबान हूं, मैं खादिम हूं। जब इतना कहा ये बताओ क्या चाहिए, ठंडा या गरम? बेचारा थका हुआ तो था ही, और अंग्रेज चाय का शौकीन था। बोले गरम चाहिए, चाय पिला दो। इस फकीर ने ऐसे किया, चाय का कप आ गया। अरे बोले यार मैं तो 1 साल कढ़ाइयां मांझता रहा, वो इल्म तो यहां है। अंग्रेज कहने लगा चाय तो छोड़ो, पहले ये बताओ ये इल्म कहां से आया, कौन सी किताब पढ़ी, जरा मुझे बता दो। और वो कभी हिंदुस्तान की मार्केट का नहीं था। ईमान लाने से पहले अंग्रेज जिस कप में चाय पीता था इंग्लैंड में, वही कप था। जी उसने पहचान लिया ये तो मेरे ही कप है। अल्लाह के वली की ताकत देखियो। और वो भी झाड़ू मारने वाला, झाड़ू मारने वाला। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के वहां पर। और उसने हाथ किया तो आ गया। जैसे ही आया कहने लगा ये बताओ ये इल्म तुम्हें कहां से आया, तुमने कौन सी किताब पढ़ी? तो उसने जवाब ये दिया मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मुझे ये इल्म बाबा की चौखट पे झाड़ू मारते मारते आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत फैजाने साबिर पाक हजरत अल्लामा सैयद मक़ूम रहमान शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। निगाह मर्द मोमिन से, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तुम्हारे करीब ये कौन सी जगह है? बायजीदपुर। इधर को जाएंगे उधर को जाएंगे, स्वार आएगा, स्वार, स्वार से इधर को आएंगे, दड़ियाल है, दड़ियाल जहाँ मुफ्ती जलीस साहब, दड़ियाल से उधर को जाएंगे, एक जगह आएगी उसका नाम खोद शरीफ है। खोद शरीफ नाम सुना होगा तो। एक खोद रामपुर के करीब, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, खोद शरीफ, वहां पे एक अल्लाह वाले का मजार शरीफ है जी जी, जिनका नाम हजरत बैरंग शाह वली है। और ये हाफिज शाह जमालुल्लाह के सिलसिले से। जी जी, इजाजत हो तो इनकी एक बात बता दूं, दड़ियाल का एक शख्स था, उसका नाम भूरा था, उसको भूरा भूरा बोलते थे। पहले नाम ऐसे ही होते थे, अगर काला हुआ तो कलुआ, भूरा हुआ तो भूरा, इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी, पीर को पीरा, मंगल को मंगला, बुध को बुद्धा, जुमराती शुभराती खैराती, जुमे के दिन पैदा हुआ तो जुम्मा, हज करिए तो हाजी जुम्मा, यही सब नाम होता था। जिस दिन जो पैदा हुआ उसी दिन उसका नाम वही हो जाता था। बोलो होता नहीं होता? लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या सनीचर के दिन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ?